Today we will discuss cross product of two vectors. क्या है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और टू वेक्टर्स. ओके, यहाँ पर टू वेक्टर ऐसे है, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा. Cross product of two vector is a single vector whose magnitude is equal to the product of their individual magnitude, whose magnitude is equal to the product of their individual magnitude, and sine of a angle, SINE, sine of a angle between them, and directed along the normal to the plane containing two vectors, directed along the normal to the plane containing two vectors. That means it is the direction of a vector cross b vector, और that is called the n. तो ये जो प्लेन में है, जैसे कि यहाँ पर ये प्लेन में टू वेक्टर है, उसको जो परपेंडिकुलर करेगा, दिस परपेंडिकुलर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो मैथमेटिकली a vector cross b vector is a single vector. Let's see whose magnitude is equal to the product of their individual magnitude. Magnitude of a vector is a and magnitude of b vector is b, and sine of the angle between them, sine theta, and it is directed along the normal to the plane containing two vectors. So a vector cross b vector का फॉर्मूला ab sin theta into nk. उधर था a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला ab cos थीटा था, ओनली cos थीटा. सो इसमें डायरेक्शन नहीं था. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. व्हिच इज स्केलर प्रोडक्ट? ना डॉट प्रोडक्ट. व्हिच इज वेक्टर प्रोडक्ट? ना क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो nk क्या है? ना nk इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर and b vector. ये दोनों को परपेंडिकुलर करेगा. It is perpendicular to both a vector and b vector. Okay. So result of this product possesses certain direction, specific direction. nk is there. So therefore it is called the vector product. Why it is called the vector product? Because result of this product possesses certain specific direction, therefore it is called the vector product. तो एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि दिस इज कॉल्ड द टॉर्क. tau is the cross product of examples में tau is the cross product of r vector cross a vector. So it is means torque. इसको क्या पढ़ेंगे? torque is the cross product of radius vector and force. Similarly, angular momentum L vector equal to cross product of r vector and p vector. तो ये क्या है ना, angular momentum is the cross product of radius vector and linear momentum. P for linear momentum, L for angular momentum. Okay, so next one is another example is there, that is v vector is equal to omega vector cross r vector. V means linear velocity is the cross product of angular velocity. ओमेगा इज द angular velocity. उसको बाद में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. angular velocity and radius vector.
एंड रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इसमें जो आ रहा है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होगा हमेशा वेक्टर होगा। आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज द टाउ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज द एल वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज द वी वेक्टर। बट उधर क्या था, डॉट प्रोडक्ट रहने से स्केलर हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट रहने से स्केलर हो रहा था, अभी वेक्टर है। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसमें थीटा क्या है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन इज उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाई बताया था क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू ए इनटू द मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए के। तो मॉड ऑफ वेक्टर मींस ये मैग्नीट्यूड, ए के मींस डायरेक्शन। ए वेक्टर में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज मैग्नीट्यूड पार्ट, सेकंड वन इज डायरेक्शन। डायरेक्शन ओमिट कर देने से मैग्नीट्यूड हो जाएगा। So therefore mod of a vector cross b vector equal to only ab sin theta. There is no unit vector because it is the magnitude. So what is the cross product of magnitude of cross product of a vector and b vector? Na ab sin theta. So unit vector which is perpendicular to a vector and b vector. तो इनके का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से ना a vector क्रॉस बी वेक्टर बाई ए बी sin थीटा डिवाइड कर दिया। ओके, अभी क्या बताया ना, ए बी sin थीटा किसका वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो इट बिकम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तब फाइंड द यूनिट वेक्टर बताएंगे, न्यूमेरिकल देंगे, find the unit vector which is perpendicular to both a vector and b vector. At that time we can calculate n cap equal to a vector cross b vector by mod of a vector cross b vector. Find a unit vector which is parallel to the a vector. तो इसमें क्या करेंगे ना, n cap equal to by a cap equal to इसे a cap equal to a vector by mod of a vector, a vector by mod of a vector. This is the unit vector parallel to a vector. Now this is the unit vector perpendicular to both a vector and b vector. जब परपेंडिकुलर करेगा तभी इसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा ना, वेक्टर होगा। तो सिंस इट इज ए वेक्टर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल, इसको थंब को इरेक्ट करेंगे, इरेक्ट स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद ये जो प्लेन है, ये प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर होगा, तो उसको क्रॉल करेंगे, क्रॉल इससे करने से एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज क्रॉल करेंगे तो ये थंब गोज अपवर्ड, सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द एन कैप। सिमिलरली क्लॉकवाइज टर्न करने से, इसे क्लॉकवाइज करने से थंब गोज डाउनवर्ड, सो दिस गिव्स द यूनिटी वेक्टर। एन कैप का वैल्यू वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ प्लेन लाइन पेपर में करने से ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये हो गया एन कैप। सो ए टू बी है जैसे एंटी क्लॉकवाइज है से ऊपर जाएगा, और बी टू ए है से ये हो जाएगा नीचे माइनस एन कैप। तो कैसे निकालेंगे ना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, RHT राइट हैंड थंब रूल में निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल में निकालेंगे। इसका डायरेक्शन ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, उसका बाद है उसका प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। Next one is characteristics and properties of cross product. Properties of cross product. First one is not commutative. उधर commutative था, यहाँ पर commutative नहीं है। क्यों नहीं है देखो, not commutative. That means a vector cross b vector not equal to b vector into a vector, और
और उसको क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कैसे हो रहा है इसको प्रूव करेंगे। जैसे कि एलएचएस में क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अभी बताया था, ए बी साइन थीटा इनटू एन के जो फिगर ड्रॉ किया था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ओके, तो इसमें एन के ऊपर जाएगा क्योंकि ए टू बी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आरएचएस में क्या है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी ए इनटू sin थीटा, ये बी टू ए आ रहा है, सो देयरफॉर इट विल बी माइनस एन के, ये माइनस एन के हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, तो बट अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, 3 into 5 is equal to 5 into 3, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज ab, ये माइनस उधर हो गया, ab sin थीटा इनटू n के, ऊपर में LHS क्या है, ab sin थीटा n के प्लस है, RHS है माइनस ab sin थीटा इनटू n के, देयरफॉर क्या हो गया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस n वेक्टर। ओके, दैट मींस इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नेचर नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट मींस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड है, स्केलर पार्ट है, सो स्केलर इज जैसे कि 5 into 3 इक्वल टू 3 into 5 होता है, उधर हो जाएगा। यहाँ पर ये वेक्टर है, उसका डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जाने से नेगेटिव आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाने से पॉजिटिव आ रहा है, सो इसलिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, उधर भी डिस्ट्रीब्यूटिव था, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with the sum of number of vectors is equal to the sum of the cross product of vectors taken with other vectors separately. That means जैसे कि a vector cross sum of other vectors, b vector plus c vector plus d vector plus वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उसके बाद a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उसको सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस d वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे हो जाएगा। This is the distributive. Both dot product and cross product obey the distributive law. Okay. Number third properties, perpendicular vector का निकालेंगे। perpendicular vectors means क्या है ना, theta equal to 90 degree, angle between them is 90 degree, जब एंगल दोनों का बीच में 90 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर? परपेंडिकुलर वेक्टर मींस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, ab sin 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री इनटू n कैप, sin 90 का वैल्यू क्या है 1, सो हो जाएगा ab into n कैप मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से मैग्नीट्यूड रहने से इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड रहने से इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड द ab। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is magnitude of cross product of two perpendicular vector is equal to the product of their individual magnitude, that means magnitude of a vector into magnitude of b vector. This statement, that means what is that statement, the magnitude of cross product of two perpendicular vectors is equal to the product of their individual magnitude. This statement is called the condition of perpendicularity. What is that?
ना condition of perpendicularity. Similarly, जो I cap, J cap and K cap, I cap, J cap and K cap बताया था. What are they? Now they are the unit vector which is acting along x-axis, y-axis and z-axis. There are ये है ऐसे, ये x-axis है, ये y-axis है, ये z-axis है. I cap is the unit vector along x-axis, J cap is the unit vector along y-axis, and K cap is the unit vector along z-axis. They are called the orthogonal unit vectors or base vectors. What are they? Now they are called the orthogonal unit vectors or base vectors. ठीक है, अभी क्या करेंगे ना, I cross J cap निकालेंगे. Keep silence and listen. हाँ म्यूट देखो जगह दे मैं पढ़ी. Oppo F17. Keep silent. I cap cross J cap. I cap cross J cap. I cap is the unit vector along x-axis. क्या के देखा? The unit vector along y-axis. Both are perpendicular. हाँ ती काट ली. Both are perpendicular to each other. So therefore क्या होगा? I cap means unit vector जिसका magnitude 1 है. J cap का magnitude 1 है. Into sin of the angle between them. दोनों का बीच में angle 90 डिग्री है. But unit vector which is perpendicular to I cap and J cap. I cap and J cap कौन सा प्लेन में? x y प्लेन में. तो उसको जो परपेंडिकुलर करेगा so K cap होगा into K cap. so ये K cap हो गया. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, J cap क्रॉस I cap करने से, J cap क्रॉस I cap होने से क्या हो जाएगा ना, माइनस K cap, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट commutative in nature. Similarly क्या होगा, J cap क्रॉस K cap, J cap K cap जो प्लेन में है उसको कौन परपेंडिकुलर कर रहा है, x एक्सिस, I cap हो जाएगा. एंड K cap क्रॉस I cap होने से, K cap क्रॉस I cap होने से क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर कौन कर रहा है, माइनस J cap. ओके. तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज जाने से I J K I, एंटी क्लॉकवाइज जाने से पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाने से नेगेटिव. दैट मींस जैसे कि J I K J ये सब नेगेटिव आएगा. I जैसे कि K cap क्रॉस J cap माइनस I cap, I cap क्रॉस K cap माइनस J cap हो जाएगा. दैट मींस ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर. नेक्स्ट इज कोलिनियर. नंबर 4 में कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर दैट मींस क्या बताया था, नंबर ऑफ वेक्टर्स हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर्स. number of vectors having common line of action. line of action ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें A वेक्टर है, B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, all are acting same line, so therefore they are called the collinear vectors. Collinear vector again divided into two parts. इसमें फर्स्ट पार्ट BDA में parallel vectors. क्या है ना, parallel vectors. पैरेलल वेक्टर्स में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू AB sin 0 डिग्री इनटू n के. तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है. सो 0 इनटू n के बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग में नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर में. नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और आर्बिट्ररी डायरेक्शन है वो हो जाएगा नल वेक्टर. नल वेक्टर ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड करने से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड 0 हो जाएगा. तो इनसे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा, लिसन कंसंट्रेट, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर 0. व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर, ए नल वेक्टर. सिमिलरली बिट 2 में सेकंड बिट में एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ओके, इसमें थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री.
both are acting opposite to each other. So a vector cross b vector equal to क्या हो जाएगा ना, f is sin 180 degree. 180 degree n cap. Sin 180 is also 0. Sin 0 0, sin 180 0, तो 0 into n cap हो गया. 0 into n cap क्या है, नॉन वेक्टर. नॉन वेक्टर उसका मॉड भी 0 हो जाएगा. मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0. सो दैट मींस इसमें कंक्लूजन क्या मिला ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स इज ऑलवेज ए नॉन वेक्टर. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर इज ऑलवेज ए नॉन वेक्टर. हमेशा नॉन वेक्टर होता है. इज इट क्लियर? ओके. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. ठीक है. उसका बाद है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर क्या बताया था ना, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन भी सेम, तो दैट देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी द इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर के लिए क्या है ना, मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा. तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री. So therefore a vector cross b vector is equal to a vector cross a vector equal vector is equal to a into a magnitude of a vector into magnitude of a vector और sin of angle between them 0 n cap. तो sin 0 तो हमेशा 0 होता है, n cap नॉन वेक्टर होता है, वो भी नॉन वेक्टर. और मॉड रहने से, ये मॉड रहने से उसका मॉड 0 हो जाएगा. That means conclusion क्या मिला ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज ए नॉन वेक्टर. जैसे उधर था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड मींस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर रहने से ए स्क्वायर होगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहने से बी स्क्वायर होगा, बट यहाँ पर 0 हो जाएगा मैग्नीट्यूड. ओके. जैसे परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, आई कैप क्रॉस जे कैप रहने से के कैप. सिमिलरली इक्वल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, यहाँ पर आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो उसका इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा ना, मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल बिटवीन देम 0, sin 0 0. Similarly, j cap cross j cap का मॉड 0 एंड k cap cross k cap का मॉड 0 हो जाएगा. दो दिन हो गया नहीं दिए, 2 दिन बीच में देने के हम कर दिए हैं. पिछले दिन तो लाइक एक दिन टाइम नहीं थे, शाम को ध्यान पड़ा चलेगा. के कैप क्रॉस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0, और ओनली के कैप क्रॉस के कैप होने से नॉन वेक्टर हो जाएगा. के कैप क्रॉस के कैप होने से नॉन वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में क्या होता है in terms of number is 6 में in terms of rectangular components, in terms of rectangular components. ठीक है. तो ए वेक्टर का फॉर्म कैसे था, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. ओके. अभी क्या निकालना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में निकालना है. सो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं. क्या है डिटरमिनेंट, ये हो गया डिटरमिनेंट फॉर्म. डिटरमिनेंट फॉर्म. फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो में होगा आई के जे के के. सेकेंड रो में होगा ए वेक्टर का कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट एक्स
ये ए वाई, ये ए जेड। यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से फर्स्ट बी आएगा, द नेक्स्ट बी वेक्टर का सिमिलरली बी एक्स, बी वाई और बी जेड। इसे दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट फॉर्म। उसको कैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन? ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। फर्स्ट रो लेने से ये साइन है, सेकेंड रो में साइन माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है। बट वी आर यूजिंग द फर्स्ट रो, सो टेकिंग द साइन कन्वेंशन ओनली फर्स्ट रो। हाउ टू सॉल्व इट? तो फर्स्ट आई के फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में ये प्लस था इसलिए प्लस आई के, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में उसको ओमिट कर देंगे, बाद में जो है उसको लिख देंगे इसे। तो ये ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड हो गया। नेक्स्ट उसमें जे कैप आएगा, जे कैप का साइन माइनस है, नेगेटिव, तो माइनस जे कैप। ये कौन सा रो में? फर्स्ट रो में। कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम, इसको ओमिट कर देंगे, इसको ओमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या था? एक्स, उधर क्या है? ए जेड, नीचे क्या है? बी एक्स, उधर क्या है? बी जेड। उसका बाद क्या है? के कैप। लिसन, कंसंट्रेट। के कैप का साइन क्या है? प्लस प्लस प्लस। तो क्या होगा? ये कौन सा रो में? फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम में? थर्ड कॉलम। ये थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो में, उसको ओमिट कर देंगे। एक पार्ट को ओमिट कर देने का बाद क्या मिलेगा? तो यहाँ पर ए एक्स, ये ए वाई, यहाँ पर बी एक्स, ये बी वाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व इट? उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो, तो डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आई कैप, ये ए वाई बी जेड। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन देंगे, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट डायगोनल, देन पुटिंग ए नेगेटिव साइन, देन मल्टीप्लाइंग द अदर डायगोनल। ये ए जेड बी वाई, तो माइनस ये जे कैप, माइनस जे कैप हो गया। तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो गया, प्लस के कैप होने से ए एक्स बी वाई, नेक्स्ट पुटिंग द नेगेटिव साइन ए वाई बी एक्स हो गया। दिस इज द, इसे सॉल्व करने से एक वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग यहाँ पर माइनस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये प्लस जे कैप होने से हो जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस के कैप होने से ये हो जाएगा एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ओके, वो था क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू है, फॉर्मूला है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल द मैग्नीट्यूड? तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा x कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई का होल स्क्वायर, प्लस जे मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट का होल स्क्वायर। y कंपोनेंट क्या है? ए जेड बी एक्स माइनस एक्स बी जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स का स्क्वायर का होल रूट ऑफ। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट फॉर्म। इसको कुछ फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। इसको हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लेट a vector equal to I cap plus 3j cap minus 2k cap and b vector is equal to 3I cap plus 2j cap plus 4k cap. ओके, फाइंड क्या करना है? फाइंड a vector cross b vector, फाइंड a vector cross b vector। तो मॉड करने से बाद में कर देंगे।
तो पहले इसे निकाल, कैसे करेंगे देखो, हाउ टू सॉल्व इट। जैसे बताया था अभी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटरमिनेंट फॉर्म बनाओ, ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया, उसका बाद ए, इसका आई कैप पास में कुछ नहीं है तो को वेक्टर 1 है, तो उसके बाद 3 है, ये माइनस है -2 -3, ये 2, उसका को वेक्टर 4, ऐसे हो गया 4 सॉल्व कैसे करेंगे उसको बताएं ना। फर्स्ट आई कैप रहने से ये हो गया 3 इनटू, पहले से रख दो 3 इनटू 4, देखो इसको ऐसे करो 3 -2 2 4 करो, माइनस जे कैप रहने से उसको ओमिट कर दो 1 -2 1 -2 3 इनटू 4, तब प्लस के कैप रहने से 1 1 3 2 हो जाए, तो आई कैप मल्टीप्लाई करो 3 इनटू 2 -4 तो ये हो गया माइनस, ये पहले बीच में माइनस साइन है ना तो +4 हो जाएगा, तो माइनस क्या बताया था, माइनस ऑफ दिस 4 into 1 4, ये माइनस प्लस 6, ये प्लस ये हो जाएगा 2 into 1 2 -9 अभी हो गया 12 प्लस 16 आई के, ये हो गया 4 प्लस 6 10, यहाँ से माइनस है तो 10 जे के -10 जे के, ये 2 -9 2 -9 7 के -7 माइनस के, इस आंसर होगा। ओके, दिस इज द आंसर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने से ऐसे कर देने से जो सर -2 प्लस कैसे हुआ और एक बार समझा दीजिए। हाँ, ये जो बताया था इसको पहले मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 into 4 मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है 12, तो उसका बताया था माइनस साइन 3 लिसन 3 into 4 minus 2 into -2, तो बीच में माइनस साइन है ना, तो -2 into 2 -4, ये माइनस प्लस 1 है, यस सर multiplying first diagonal and putting the negative sign and multiplying the second diagonal, तो बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज द रिजल्ट। ये माइनस जे क्या था यहाँ पर इसलिए माइनस हो गया, so you have to solve like this, in this way you can solve it, okay, be concentrated about your study। तो ये तो पोस्टपोन हो गया 30 दिसंबर 31 तक।